العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحمان اور رحیم ہے اور وہی پروردگار میں ارشاد فرماتا ہے سب کی توجہ پاش پہ طرف رہے لائٹ چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم پریشانیاں جھیلیں گے اس فرش اعضا پہ اگر چاہے گرمی کی ہو چاہے پیاس کی ہو چاہے بھوک کی ہو یاد رکھیے ہمیں اجر اتنا ڈبل ملے گا صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کیونکہ ہماری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ جتنی ہماری شہزادیوں نے اس راستے سے گزر کے کر دیا ہے تو ان کی پریشانیوں کو سوچتے ہوئے ہمیں کبھی بھی کوئی صرف مجلسوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر پریشانیاں آئے چاہے کہیں جلوس میں جا رہے ہیں چاہے کسی راستے پہ جا رہے ہیں اگر کچھ پریشانی آ جائے تو شکر خدا ادا کرو کہ پر ہو سکتا ہے شہزادی ہمارا امتحان دے رہی ہوں کہ دیکھو آج یہ جو وبا ہے یہ امتحان ہے ان عزاداروں کے لیے جو کہتے تھے کہ اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں تو جب تم آج اس وبا کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہو تو میدان کربلا میں ہو کے کیا کرتے میدان کربلا میں ہو کے کیا تم تیر کھا سکتے تھے فوراً درخت کے پیچھے چھپ جاتے کہ ارے یہ تیر بہت زیادہ وہ تھا کیونکہ جب مولا کہتے تھے آج میں کہنا کچھ چاہتی تھی مگر آج اس کو دیکھتے ہوئے بتاتی ہوں میں کہ مولا جس طرح کے مولا کہتے تھے سرونی سرونی اے لوگوں مجھ سے سوال پوچھو تو لوگ کیا کہتے تھے کوئی کہتا تھا یا مولا ہمارے بال کتنا ہے یا مولا ہمارے جیب میں سامان کتنا ہے یا مولا ہمارے کتنا ہے لیکن ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یا مولا ہم آپ کے لیے حاضر ہیں لیکن صرف ظاہری کہتے تھے صرف زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ مولا کی محبت کا جب مولا کہے کہ اچھا تم ہم سے محبت کرتے ہو تمہیں ہماری معرفت ہو چکی ہے تو دعویٰ کرنے میں سب سے آگے لیکن جب مولا کہے کہ چلو جنگ کرنا ہے تو یا علی سردی بہت ہے یا علی گرمی بہت ہے یا علی کیا کریں گھر سے نکلنے والا تھا کہ ماں بیمار ہو گئی بھائی بہانہ جب ہم نکالنا چاہتے ہیں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری مجلسوں میں کیوں نہیں آئے تو آنا تو چاہ رہے تھے مگر فلاں کام میں نکل گئے آنا تو چاہ رہے تھے مگر فلاں جگہ نکل گئے یہی ہو رہا ہے آج کل یا آئیں گے بھی تو فرشیدہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تھوڑی دیر ہم نے اٹینڈ کر لیا کہ فلاں باجی کی مجلس ہے فلاں دادی کی مجلس ہے مگر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نہ باجی کی مجلس ہوتی ہے نہ دادی کی مجلس ہوتی ہے نہ نانی کی مجلس ہوتی ہے مجلس صرف اور صرف آقا حسین کی ہوتی ہے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صدقہ ہے اہل بیت کا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والا ساتھ ملے گا کہ نہیں ہمیں اور یاد رکھیے کہ ذرا ان کی طرف دیکھیے جو آج بھی فرش اعضا پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں مگر اللہ نے انہیں صحت نہیں دی ہے آج بھی وہ فرش اعضا پہ آنا چاہ رہے ہیں جو بڑے سے بڑے نوحہ خان ہے چاہتے ہیں کہ نوحہ پڑھے مگر اللہ آواز سے نواز نہیں رہا ہے تو یاد رکھیے یہ خدا کی نعمت ہے خدا کہتا ہے کہ میں کوئی بھی چیز یہ نہیں کہ بس دولت ہی ہمارے پاس نعمت ہے یا بڑا گھر ہو گیا تو ہمارے پاس نعمت ہے یا شہرت ہمارے پاس ہو گئی یا بڑی سے بڑی کاریں ہیں تو ہی نعمت ہے ہمارے پاس نعمت ہی نہیں ہے بھائی اس کے بعد تو ہم اتنے سجدے کرتے ہیں مگر اسے دیکھو کتنا گھر اللہ نے دیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو بس دنیا میں دے رہا ہو آخرت میں اس کے پاس خالی ہاتھ ہو تو کبھی بھی خدا سے شکایت مت کریے خدا کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو سمجھو میں نے تمہیں سب سے بڑی نعمت میں سے ایک عظیم نعمت ہے وہ ہے صحت وہ ہے تندرستی وہ ہے حیات اس کا تمہیں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جیسے خدا چاہتا ہے کیسے خدا چاہتا ہے ذکر خدا میں چاہتا ہے
कि अगर तुम्हारे पास सेहत है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिक्र खुदा में डालो। ये नहीं सोचो कि फला चीज़ हो गई, अरे हम कैसे निकले। यहाँ पे जितनी भी बैठी मौजूद खवातीन है, मुझे बता दे क्या किसी के घर में काम नहीं होगा? सबके घर में काम है। अगर नॉर्मल डे में चले जाओ तो हमें वक्त नहीं होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बाहर निकलें। लेकिन ये मौजिज़ा है मेरी माँ फातिमा ज़हरा का कि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि या बीबी मजलिस में जाना है, ये काम हो जाए। हर दिन मौजिज़ा हमारे साथ होता है, हर दिन मौजिज़ा हमारे साथ होता है। बल्कि मैं मिंबर से कह के बैठ के बोल रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या सोच के आती हूँ, लेकिन मेरी शहजादी जो चाहती है वही मैं पढ़ती हूँ। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अरे हैदरी या अली या अली हैदरी या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले अब इंतजार न करना कि दूसरा नहा होए तो जाए, अब इंतजार न करना मर्सिया खत्म हो जाए तो जाए, अब इंतजार न करना कि फजाइल बहुत लंबा हो गया तो जाए। क्योंकि जितनी देर आप जिक्र इबादत करेंगे आपके गुनाह किस तरीके से झड़ेंगे जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। जब एक मरतबा मेरा मौला कहता था ना, आज भी हम उसी तरह हैं, मौला कहता था कि चलो भाई जंग पे चलो, तो लोग क्या कहते थे, या अली बड़ी सर्दी है, कैसे घर से बाहर निकले। दावा तो करते हैं ना, तो फिर सर्दी किस बात की? या अली बड़ी गर्मी है, दावा तो करते हैं ना, फिर किस बात की गर्मी? या अली बड़ी शिद्दत हो रही है, बाहर जाएंगे तो भूख लगेगी। तो मौला ने एक मर्तबा चेक करने के लिए, ऐसा ना हो कि मौला हमें कभी चेक कर ले कि फला मजलिस में आज ये जाती है कि नहीं जाती है, और उसी मजलिस में अल्लाह ना करे अगर हम नहीं गए तो कहीं मेरा मौला इस बात से इम्तिहान तो नहीं ले रहा है हमारा। याद रखिए, कभी ऐसा भी हुआ है जो हमसे वाकिफ है कि बरसात की इतनी ज़ोर से आंधी आती है लेकिन फिर भी मैं मजलिसों में आती हूँ। वजह क्या है कि मैं चाहूँ तो एक फ़ोन कर दूँ, भाई मजलिस हो रही नहीं आ सकती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरी फातिमा मुझसे इम्तिहान तो नहीं ले रही है कि तुम्हें जिक्र हुसैन करना है, तुम बरसात के घर से बैठ गई। तो याद रखिए, चाहे बरसात आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें अपने बच्चों में ये नुसरत दीन की वैक्सीन डालना है कि बेटा कुछ भी हो जाए, चाहे बड़े हो जाए, चाहे बूढ़े हो जाओ, चाहे जवान हो जाए, अपनी नस्लों में हुसैन की वैक्सीन डालना है। सब आप पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपकी इल्मी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि जो आप इस बात को अप्रिशिएट कर रही, समझ रही हैं, बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए भी कहते हैं ना लेवल होना चाहिए जो हुसैन के फजाइल को समझ सके। बस एक मर्तबा मौला ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, चलो कल जो भी जितने भी नौजवान हैं, किसी से गला काटने को नहीं कहा मौला ने कहा कल अपनी दाढ़ियों को कटवा के आना। बड़े नौजवान परेशान, और अपनी जो जुल्फ़े हैं दाढ़ियों को बढ़ाना और जुल्फ़ों को कटवा के आना। अब एक मर्तबा कुछ तो बड़े हेयर स्टाइल बनाते हैं आजकल नौजवान की, भाई हेयर स्टाइल है, दाढ़ी रखते हैं तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि हुक्म है। अब जब बाल कटवाने को कहा तो कितनों के कलोजों पे सांप लौट गया कि भाई गर्दन कटवाने को कह देते तो अच्छा रहता, मगर मौला ने बाल कटवाने को कह दिया। मौला ने कहा ये जो तुमने लड़कियों की तरह बाल रखे हुए हैं इन्हें कटवा दो तो बेहतर है। अब कल जो अगले जुमा आ रहा है, एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अगले जुमा जब तुम आना तो अपने बालों को कटवा के आना। अब सब परेशान कि भाई जितनों को भाई जो सही माने मौला को चाहते थे उन्होंने कटवाया भी। अब जुमा आ रहा है, परेशान क्या करें। अब एक ने कहा कि भाई हमारी तो नई शादी हुई है। अब जौजा से कहा, यही होता है ना कि भाई फला जगह आप क्यों जा रहे हैं, देर हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। जौजा ने कहा कि भाई अगर आपने बाल कटवा दिया और बाल कटवाने के बाद हमारी सहेलियों को आप पसंद नहीं आए तो हम तो भाई आप रूठ जाएंगे और आपको हमें मनाना होगा। बड़ा ख़वातीन बड़ा ख्याल रखती है कि शौहर बड़े स्मार्ट दिखे। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर जौजा ने मना कर दिया कि एक तरफ कौन है, जौजा है, और दूसरी तरफ कौन है, मौला है। यही तो होता है ना, एक तरफ दुनिया होती है और एक तरफ आखिरत होती है, एक तरफ जहन्नम है और एक तरफ जन्नत है। यहाँ अली ने कहा है कि दावा करते हो तो उस पर पूरा करो, लेकिन यहाँ जौजा नाराज हो गई तो परेशानी, सारे घर के काम हमें करना पड़ जाएगा। अब उस जमाने में तो होटल नहीं थे ना भाई
कि चलो अगर नाराज भी हो गई 2-3 दिन के लिए तो जाके हम चॉइस वॉइस कहीं बैठ जाएंगे, लेकिन अब परेशान कि भूखे रहना पड़ेगा। कि कितनों ने कहा कि भाई हमारी नई शादी होने वाली है, अब मैं दूल्हा कैसा लगूंगा बाल कटवाने के बाद। मौला ने कहा पूरे बाल को मुंडवा के आना, खाली इतना कहा था मौला ने। अगर इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा रखने देते तो भी अच्छा था। अब एक तरफ अली है, अब परेशान करें तो क्या करें कि बाल कटवा दिया तो भाई शादी में दूल्हे के सेहत जो मैंने इतना फेशियल करवाया सब बेकार चला गया। और यही होता है ना शादियों में, गाने बजाने होते हैं, हर 30 चीज़ें होती है, हर तरीके का एहतमाम, लेकिन इस्लाम ने इस बात को मना किया है। लेकिन अगर कोई बोल दे तो यही होगा कि भाई हमने बोल दिया तो हमें बुलाया नहीं जाएगा। यही होता है ना, अगर हक कोई बोल दे, अगर आप फला कोई बच्ची है अगर पर्दा नहीं कर रही है, अगर आपने कह दिया कि बेटा पर्दा किया करो तो घर वालों से लेके खानदान तक ना वो हो जाएंगे, आपका शजरा खोल के रख देंगे कि भाई आप भी तो ऐसी हैं, आपके लोग भी तो ऐसे हैं। तो बेशक आप किसी और को मत तोहमत करिए, अपने अंदर झांक के देखिए क्या हमारी बेटी पर्दा कर रही है, क्या हमारा शौहर वक्त पे नमाज पढ़ रहा है, क्या हम अपने बच्चों की तरबियत सही से कर रहे हैं। तो अगर हर इंसान अपने अंदर झांकने लगा तो याद रखिए कोई ऐसा मोमिन नहीं है जो आका का सच्चा हुसैनी अज़ादार न बने। बस एक मर्तबा परेशान कहा कि चलो अली को बेवकूफ़ बना लेंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अली को बना रहे हैं। क्या करें कि एक मर्तबा एक शख्स आया और कहने लगा कि जुमे का दिन है, चलो हम 3 दोस्त हैं, क्या करेंगे कि अली को क्या मालूम इतने मजमे में कौन है। भाई कितने सुनते हैं ना, कितने हज़ार मजमा होता है था, कितने सवालात का मजमा होता था जब मेरा मौला खड़ा होता था। उतने मजमे में किस अली को क्या मालूम कि किसने बाल कटवाया नहीं कटवाया। यही तो हम सोचते हैं कि अगर हम मजलिसों में माजरत के साथ जो नहीं करते उनको नहीं बोल रही हो, अगर हम मजलिसों में मेरी जाकिरा मेरा नौहा खान वो पढ़ेंगे तो जाएंगे, वो पढ़ेंगे तो नहीं रोएंगे, अगर ये कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स, तो याद रखिए हम देखे ना देखे क्योंकि हमारी तो गुनाहगार आंखें हैं, लेकिन मेरा मौला हर का दिल भी देखता है। सलाम पढ़िए मोहम्मद ने जो किया भी नहीं, सामने बड़ी मुस्कुरा के मिल रही हो जाकिरा से, लेकिन दिल में तुम्हारे जो भी है वो मेरा मौला देख रहा है। मैं तो अपना एग्जांपल दे रही हूँ, किसी और का नहीं बोल रही हूँ कि सामने तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, सामने तो मेरे चेहरे पे अपने रिश्तेदारों को खुश कर रही हूँ, लेकिन पलटते ही फला तो ऐसी थी, उसका लिबास देखा था। हो सकता है किसी परेशानी से उसके घर में कोई परेशानी हो जिसकी वजह से वो आज इतना बेशकीमती लिबास नहीं पहनी, मगर हमें 2 मिनट लगता है किसी का मजाक उड़ाने में, हमें 2 मिनट लगता है किसी के पर तोहमत लगाने में, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। एक शख्स आया और कहने लगा, यहाँ पे मैं वाक़या रोकते हुए कि कहने लगा कि मौला हम तो जो उसने किया है वही बात कर रहे हैं, तो ये गीबत कैसे हुई? तो मौला ने कहा कि ये जो तुम उसकी एब्सेंट में कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगी फौरन मुंह पे बोल दो, लेकिन आज के ज़माने में हक पे बोलेंगे तो तलवार उसी की काटी जाएगी जो हक बोलता है, ज़बान उसी काटी जाएगी। बस एक मर्तबा मौला से कहने लगा, मौला उसने जो किया है वही तो हम कर रहे हैं। मौला ने कहा याद रखना अगर उसकी गैर हाजिरी में तुमने बोला तो वो गीबत हुई, और जो उसने किया ही नहीं है तब भी तुमने उसके पर इल्जाम लगाया तो वो तोहमत हुई। तोहमत अलग है, गीबत अलग है। सब पढ़िए मोहम्मद। अब जो हम काम करते हैं, हमने तो दिन भर मजलिसें करी, हमने तो दिन भर मातम किया, लेकिन अब शैतान भी तो परेशान होगा कि भाई हम तो आए थे भटकाने, मगर यहाँ तो सब मजलिसों पे मजलिसें कर रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, अब क्या करें? तो अब वसवसे पैदा करता है कि लाओ जाकिरा का वसवसा पैदा करो, लाओ नौहा खान का वसवसा पैदा करें। इन्हें हम मजलिसों से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनके जहनों में मजलिसों में ऐसा काम कर देंगे कि इनकी मजलिसें खराब हो जाए। हम आए किस काम से थे? मौला का गिरिया करने आए थे, लेकिन शैतान है जो आपको वसवसों में घेर रहा है। याद रखिए कि गुनाह झड़ तो रहे हैं, लेकिन जो शैतान है कि जिसको खुदा ने कहा है कि जो मेरा सच्चा आज़ादार होगा, जो मेरा सच्चा बंदा होगा, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, वैसे सच्चे आज़ादार हमें बनना है। शैतान अपना काम कर रहा है, ये लाइट भी एक तरह से शैतान ने गवाही होगी कि शैतान अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना है। इसी को कहते हैं सिरात मुस्तकीम पे चलना। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली या अली या अली या अली।
है जब जवान इबादत करता है, क्योंकि उसकी नस्ल बची हुई है। कहता है परवरदिगारा, ये कैसा बंदा है कि मैं इसको नमाज के लिए रोक रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा है, मैं इसको मजलिसों में जाने के लिए बहका रहा हूँ कि तेरा कितना अच्छा क्रिकेट का मैच चला जा रहा है, ये मजलिस में जा रहा है। मैंने इसे फ़ोन दिया कि मजलिस ये कुछ और सुने, मगर ये फ़ोन भी हाथ में लिया है तो मजलिस से सुन रहा है। ये कैसा तूने बंदा बना के भेज दिया? ऐसा आज़ादार बनना है हुसैन का कि शैतान खून के आंसू हुए, और वो शैतान और कोई नहीं, याद रखिए कि वही हुसैन के जो दुश्मन हैं वही शैतान है, जो वसवसे पैदा करते हैं कि गिरिया क्यों करते हैं, मातम क्यों करते हैं, खून क्यों बहाते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई मजलिस भी मत पढ़ो, आवाज़ बैठ जाएगी, नौहा भी मत पढ़ो, आवाज़ बैठ जाएगी, तबर्रुक भी मत बांटो, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी काम अंजाम मत दो। आज खून के मातम में तुम रोक रहे हो, याद रखना कि जब हम खून का मातम करते हैं तो हमारी नस्लों में मौला शिफा दे देता है। ये है मेरे आका हुसैन की मोहब्बत। एक मर्तबा वो नौजवान आए और कहे इतने मजमे में अली क्या देखेंगे, क्या मालूम हमें। एक मर्तबा सफ़ेद रुमाल लिए और अपने सर को बांध दिया, बालों को छुपा लिया। अगर हम आप होते तो समझ जाते कि अरे बेचारा कितना मानने वाला है। लेकिन याद रखिए, आप हमें धोखा दे सकते हैं, अपने माँ को धोखा दे सकते हैं, अपने बाप को धोखा दे सकते हैं, मगर इमाम को धोखा नहीं दे सकते। एक मर्तबा मौला ने कहा कि क्या सबने बालों को कटवा लिया? सब बुलंद हो के हाँ मैंने कटवा लिया। उसने भी, किसने बालों में झूठे रुमाल को लगा के बैठा है। एक मर्तबा मौला ने कहा कि वाकई 3 बार मेरे मौला ने मौका दिया। इसी तरह से जब हम गुनाह करते हैं ना तो मेरा अल्लाह मौका देता है हमें। बस एक मर्तबा मौला पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। मजमे को चीरते हुए मौला तलवार लेके आगे बढ़े और उन नौजवानों के सरों पे रखे और रुमाल को हटाते हुए कहे कि कभी भी अली का झूठा दावा मत करना। अगर मोहब्बत नहीं है तो कह देना अली से मोहब्बत नहीं है, मगर वो लोग मुझे बुरे लगते हैं जो झूठा दावत मेरी मोहब्बत का करते हैं। सब अपनी आज की मजलिस का मकसद पूरा हो जाएगा, बानियाने मजलिस की मेहनत पूरी हो जाएगी कि अगर कोई भी एक इंसान ये सोच ले कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मेरा वक्त का इमाम देख रहा है। हम बेवारिस नहीं है, हम वारिस वाले कौम है। एक यही कौम तो है कि जिसका वारिस जिंदा है। बस मेरा इमाम ऐसा ना हो कि हम शैतान को रुलाना है हमें खून के आंसू, लेकिन जब मोमिन गुनाह करता है तो मेरा इमाम भी रोता है कि तुम मेरे हुसैन का जिक्र करके अभी आ रही हो और तुम घर में आके ये मजलिसों में ये हुआ वो हुआ ऐसा करना। तो अब आज की मजलिस को कामयाब कर दीजिएगा। बस अजीज़ों, आज हुसैन के कड़ियत जवान का जिक्र करना है।